Hi viewers, this is VV Kulkarni from BMG School, JNV Dharashiv. Today we will see a competency based question on the topic quadratic equation, and the theme for the today's topic is area irrigated by two circular sprinklers. This video is meant for class 10th mathematics students. Good morning, children. Good morning, sir. Today we will take up one interesting competency based question on the topic quadratic equation. Here, what is the question? The question reads like this: to keep the lawn green and cool, Sadhana uses water sprinklers which rotate in circular shape and cover a particular area. See, to keep the lawn green, a girl called Sadhana, उसने क्या किया? स्प्रिंकलर्स लगाए, पानी का स्प्रिंकलर्स, आपको पता है क्या? वो ऐसे गोल गोल घूमता है और पानी क्या करता है? स्प्रिंकल करता है. So for that purpose, she has applied what? These sprinklers, you can see it in the picture. आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये सारे स्प्रिंकलर्स उसने लगाए हैं ताकि लॉन क्या हो जाए? ग्रीन रहे. ओके, तो ये सिचुएशन है. अब इस सिचुएशन का डायग्राम बिलो शोज द सर्कुलर एरियाज कवर्ड बाय टू स्प्रिंकलर्स. आप देख सकते हो कि स्प्रिंकलर्स ने जो कवर किया है एरियाज, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है. गोल गोल घूमता है और वो पानी क्या करता है? It will spray the water on the lawn so that the lawn remains green as well as cool. Now you may be wondering, sir, what that lawn has to do with the quadratic equation? Quadratic equation का और इस lawn का स्प्रिंकलर का क्या संबंध है? तो अब मेन बात की तरफ मैं आता हूं कि उसका क्या संबंध है. Let's exterminate. The sum of their area is 135 square meters and the distance between their centers is 14 meters. See, there are two circles now. The radius of the first circle is how much? Bigger circle, we don't know. The smaller circle also radius we don't know, but it is denoted by symbol capital R and small r. And the distance between the center is how much? 14 meters. The area is how much? 135 square centimeter. Okay. Now, based on the above, this is very important. Based on the above information, answer the following question. तो पहला क्वेश्चन है, obtain a quadratic equation involving capital R and small r from the above information. आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके अंदर कैपिटल R आना चाहिए, स्मॉल r आना चाहिए, इस सिचुएशन को लेकर. तो देखिए, अगर मैंने इसका एरिया कैपिटल A का A1 कहा और इसका एरिया A2 कहा, suppose if I consider that area of the bigger circle is capital A1 and this is capital A2 and radius already you know it's capital R, radius here is small r. Now what is given to us? What is the sum of their areas? What is the sum of their areas? 135. That means what? The area of the bigger circle plus the area of the smaller circle is equal to how much? 135. This is the information given to us. बड़ा सर्कल का एरिया प्लस छोटा सर्कल का एरिया दोनों को मिलाओगे तो कितना होगा? 135 होगा. तो बड़ा सर्कल का एरिया होगा बच्चों 5r² और छोटा सर्कल का एरिया होगा 5r² इज इक्वल टू हाउ मच? 135. ओके. अब यहाँ पर व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? तो अगर पाई कॉमन है तो ये होगा r² इक्वल टू हाउ मच? 135. बच्चों ये पाई कैंसल्स विद दिस पाई, तो क्या बचेगा? r² प्लस r² इज इक्वल टू हाउ मच? 130. Is it a quadratic equation? Is it a quadratic equation? No. It's a quadratic equation because the degree is 2. The degree is 2. So we are getting what is it? The equation, what should be what is it? The degree should be in terms of r and r. यानी इसके अंदर कैपिटल R भी आना चाहिए और इसके अंदर स्मॉल r भी आना चाहिए. ऐसा वाला एक इक्वेशन बना. तो आप यहाँ देख सकते हो इसके अंदर बड़ा r भी है, इसके अंदर छोटा r भी है और इसका डिग्री भी 2 है. तो r² प्लस r²
इज इक्वल टू 130, या तो फिर आप उस तरह बोल सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 130 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये इक्वेशन, ऐसा एक रिलेशन बनना चाहिए जहां पर कैपिटल आर आएगा और जहां पर क्या होगा, स्मॉल आर आएगी। ओके, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग स्मॉल आर, write a quadratic equation involving small r. Already we have got an equation r square plus r square is equal to how much? R square plus r square is equal to how much बच्चों? हाँ, r square plus r square is equal to how much? 130। प्रीवियस स्लाइड में आपको ये इक्वेशन मिला हुआ है। अब आपको ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जहां पर ओनली स्मॉल आर आना चाहिए। पिछली बार उन्होंने क्या कहा था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके अंदर कैपिटल आर भी आना चाहिए और स्मॉल आर भी आना चाहिए। अब की बार आपको क्या कहा है कि ओनली स्मॉल आर, इन्वॉल्विंग ओनली स्मॉल आर, दैट मींस आर, स्मॉल आर इज द ओनली वेरिएबल। अब देखो इसके लिए दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14, ये काम आएगा। कैसे? दो सर्कल आपको दिया है, एक बड़ा वाला सर्कल दिया है और एक छोटा वाला सर्कल आपको दिया है। तो देखिए जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं बच्चों, ये कैपिटल आर है और ये क्या है, स्मॉल आर है, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मान लीजिए इसका सेंटर ओ है और इसका सेंटर ओ डैश है, तो उन्होंने आपको क्या दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज हाउ मच, 14 मीटर। यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना दिया बच्चों आपको, 14 दिया। इस बात को याद रखो, when two circles touch each other externally, the distance between their centers is equal to sum of their radii. I repeat my sentence again, very important sentence. When two circles meet each other externally, the distance between their centers is equal to sum of their radii. Okay, तो हमको दूसरी बात जो दी है वो ऐसे दी है कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू हाउ मच, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू हाउ मच, 40। हमको चाहिए इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। एक्चुअली इसको कैसे कहा जाता है, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। तो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर अगर चाहिए बच्चों तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि r इज इक्वल टू 14 माइनस r, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू 14 माइनस स्मॉल r, है ना, राइट लाइक दैट। तो अभी इस इक्वेशन को इसमें अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, यानी इन प्लेस ऑफ कैपिटल R आई राइट 14 माइनस व्हाट, 14 minus r plus r square is equal to how much? Is equal to how much? 130. Now this is the formula of what? A minus b whole square. तो a minus b whole square अगर है तो first term square minus 2 into first term second term plus what is it? Second term square plus ये वाला r square is equal to how much? 130। जिसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलते हो उसको आप क्या कहते हो, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही कहते हो ना आप। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है बच्चों, 14, सेकंड टर्म कितना है 14 और r, और फिर अगेन सेकंड टर्म यहाँ पर कितना है r। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196, 2 इंटू 14 इंटू r कितना होगा बच्चों, ये 28r plus r square plus r square, is it right children, is equal to how much, sorry ये 130 है तो इस 130 को मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ तो ये प्लस 130 इधर आ जाएगा, क्या होगा बच्चों, ये माइनस 130 is equal to 0, right। now again if I simplify, r square plus r square, 1r square plus another r square is equal to कितना होगा बच्चों, 2r square होगा, right। 1r square plus another r square is 2r square minus what, 28r। अब यहां पर देखिए आप 196 आपके पास है माइनस 130 है, प्लस 196 माइनस 130 इज इक्वल टू हाउ मच, 66। तो ये होगा 66 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2r स्क्वायर, 2 स्मॉल r स्क्वायर ऑफ कोर्स minus 28r plus 66 is equal to 0। Again what is the common factor बच्चों, यहाँ पर 2 कॉमन है तो r square minus 14r plus how much 33 is equal to how much। अब बच्चों इसको मैंने अगर ट्रांसपोज कर दिया तो आपको क्या मिलेगा,
आपको इक्वेशन मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस हाउ मच 33 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। आपको क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग स्मॉल आर। तो आप देखिए ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। तो एक्चुअली मैथ्स की भाषा में क्या कहा जाता है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर के रूप में आपको मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइन। और अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसे बोलता है कि इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, तो क्या करोगे, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू 14 माइनस कैपिटल आर। एग्जाम में अगर मान लीजिए गलती से चेंज कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया and if they ask you to find out the quadratic equation in terms of capital R, तो आप क्या करोगे, स्मॉल r is equal to 14 माइनस कैपिटल R वो सब्स्टिट्यूट करोगे। मैं क्लियर, राइट। तो जैसे तुमको क्वेश्चन पूछा है वैसे तुमको ट्विस्ट करना आना चाहिए। तो अगर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r तो स्मॉल r में आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R आना चाहिए। फाइन। और इस इक्वेशन को याद रखना कि आगे हमको ये काम आएगा। व्हाट इज दैट इक्वेशन, r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33। इस इक्वेशन को याद रखो, अगले स्लाइड में हमें काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे इक्वेशन की जरूरत है, आप लोगों ने नोट किया इक्वेशन, बताइए थोड़ा मेरे को इक्वेशन क्या है बोल के। r square minus 14r plus 33 r स्क्वायर माइनस 14r 14r plus 33 इज इक्वल टू 0 0 प्लस 33 माइनस 33 है, प्लस 13 हमने पिछले देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड इज रिलेटेड टू थर्ड, थर्ड इज रिलेटेड टू फोर्थ। यहाँ पर एक दूसरे का कनेक्शन है। तो आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द रेडियस, यानी आपको रेडियस ढूंढने के लिए कहा है स्मॉल आर। फाइंड द रेडियस कौन सा, स्मॉल आर, ओके। एंड करस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड, छोटा आर हमको बताइए और कितना एरिया वो इरिगेट करेगा। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। इनटू करने पर 33 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर 14 आना चाहिए। कोई नंबर है आपको पता है, यस वेरी नाइस। क्या होगा, माइनस 11r माइनस हाउ मच 3r। तो 11 इंटू 3 इज हाउ मच, 11 इंटू 3 इज हाउ मच, 11 प्लस 3 इज हाउ मच, वी गॉट द नंबर। फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर मिला। तो आगे सॉल्व इट। तो हियर व्हाट इज कॉमन अगेन, r इंटू ब्रैकेट r माइनस 11 और माइनस 3 कॉमन ले लो, ताकि ये प्लस इज मेड अप ऑफ 2 माइनस, हमेशा प्लस इज मेड अप ऑफ 2 माइनस, उसमें से एक माइनस कॉमन ले लिया मैंने। तो दिस इज अगेन r माइनस हाउ मच 11 इज इक्वल टू 0। तो अगेन इफ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, r माइनस 11 into r minus 3 is equal to how much, 0। Product of two brackets are 0, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट r minus 11 is equal to 0 और r minus 3 is equal to 0, okay। तो r is equal to how much, 11 and r is equal to how much, 3 आपको सेंटीमीटर या यूनिट्स लिख लेंगे, अगर यूनिट्स नहीं दिया है तो, अगर मीटर दिया है तो मीटर, जो भी आपको दिया है मीटर दिया है क्या, तो मीटर दिया है तो 3 मीटर्स लिखो और 11 मीटर्स लिखो, क्योंकि रेडियस इज द स्केलर क्वांटिटी, इट हैज द वैल्यू, डायमेंशन है उसको। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है मगर एक वैल्यू गलत है उसमें, कौन से है, कौन सा 11 गलत है। क्यों 11 गलत है, यस दोनों रेडियस मिलाकर कितना हो रहा है 40 और हम कह रहे हैं कि कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर से बड़ा है। और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलाकर कितना होना चाहिए 40। तो अगर मैंने स्मॉल आर को 11 ले लिया तो कैपिटल आर विल नॉट बी ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल होगा। ऐसे कट नहीं करना एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज डिस्कार्डिंग, इसको डिस्कार्ड करके हमारा सही वैल्यू क्या होगा 3। तो सी आर, तो डिस्कार्डिंग आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, डिस्कार्डिंग आर स्मॉल आर इज इक्वल टू हाउ मच 11 यूनिट्स 11 मीटर, बिकॉज क्या है कैपिटल आर इज ग्रेटर देन
स्मॉल आर। तो r इज इक्वल टू हाउ मच 3 मीटर, मीटर में दिया कह रहे हो आप। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर, फाइंड रेडियस। अब करस्पॉन्डिंग एरिया कैसे ढूंढोगे भाई? व्हाट इज द एरिया? ये स्प्रिंकलर का रेडियस आपको दिया है, अगर रेडियस दिया है और स्प्रिंकलर कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर स्प्रिंकलर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एरिया कैसे ढूंढोगे आप? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यस, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इरिगेटेड, एरिया इरिगेटेड क्या होगा? आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू हाउ मच? पाई इंटू हाउ मच? 3 स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 9 पाई, या कभी कभी एग्जाम में आप क्या कर सकते हो इसको? 9 इंटू 22 बाय 7 कितना होगा ये? 9 टू ज़ा 18 कैरी 1, 9 टू ज़ा 18 प्लस 1 कितना होगा? 198 बाय 7 स्क्वायर। तो आप इसको डेसिमल पॉइंट में भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो इतना एरिया वो इरिगेट करेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या बनाया? एरिया इरिगेटेड फाइंड आउट। ओके, अच्छा है। फाइंड द रेडियस कैपिटल आर एंड एरिया इरिगेटेड। कैपिटल आर कितना होगा बच्चों? कैसे ढूंढोगे कैपिटल आर? फिर से क्वाड्रेटिक बनाओगे? जरूरत है क्या फिर से क्वाड्रेटिक बनाने की? नहीं, क्या करोगे फिर? या 14 माइनस स्मॉल आर। सेंटर कितना है? I already told you that when two circles touch each other externally, the distance between their center is equal to sum of their radii. दो सर्कल अगर बाहर से मिलते हैं तो उनका डिस्टेंस क्या होता है? बड़ा सर्कल का रेडियस तो छोटा सर्कल का रेडियस। तो हमको दिया है उन्होंने ऑलरेडी कि r प्लस r कितना है? r प्लस r कितना है? 14। और ऑलरेडी आपके पास स्मॉल r की वैल्यू पिछले स्लाइड में हमने ढूंढा था। कितना है पिछले इसमें? स्मॉल r कितना है? तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? तो इस 3 को मैंने अगर इधर ट्रांसपोज किया तो कैपिटल R इज इक्वल टू हाउ मच? 14 माइनस 3। और ये कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 11 मीटर। कैपिटल R तो मैंने ढूंढ लिया। अब क्या पूछा है फिर से अगेन? करस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड। तो एरिया इरिगेटेड अगर आपको चाहिए तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? क्या करोगे बच्चों? क्या करोगे? व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट? क्या ढूंढोगे आप? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 5 into capital R square. So 5 is how much? 22 by 7. और रेडियस इज हाउ मच? 11 into 11. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज 22 मल्टीप्लाइड बाय 11 into 11 इज हाउ मच? 121 डिवाइडेड बाय 7। तो आप इसको अगेन यू मल्टीप्लाई 22 1 जा 22 कैरी 2 22 2 जा 44 44 plus 2 is how much? 46 carry 4 22 1 जा 22 plus 4 is how much? 22 1 जा 22 plus 4 is how much? 26. So 26 divided by how much? 7 square meters. So this much of area will be irrigated by the sprinkler of bigger radius, बड़ा रेडियस वाला। या चाहिए तो आप इन टर्म्स ऑफ पाई भी आप लिख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ पाई अगर उन्होंने पूछा है तो कैपिटल आर होगा 11 स्क्वायर, तो इसको आप 121 पाई भी लिख सकते हो। और बेटर एग्जाम में आप क्या करो पता है क्या? यू राइट इट। आप बेटर एग्जाम में क्या करो? वैल्यू पुट करके लिखो। ऐसे लिखो 121 मीटर और आगे इनटू 22/7 करके सॉल्व करके बेटर यू अराइव दिस क्वेश्चन, यू विल बी वेरी सेफ। एम आई क्लियर?